Modi Sarkar 3.0 and wasting no time gets to work. This is important now. Remember, for the third time, there will be pending projects, promises to be fulfilled, and a lot of projects that will have to be immediately initiated. What we are picking up from on the ground is announcements have already been made, specifically when it comes to the housing schemes that have been organized. As ministers start to take charge, like Dr. S. Jaishankar, taking charge early this morning of the External Affairs Ministry that he has retained, but also importantly with the cabinet and the portfolio announcements that have come in. The fact is, 4 big ministries have been retained by the Bharatiya Janata Party. The new cabinet will have the continuity factor. Amit Shah, Rajnath Singh, Nirmala Sitharaman, S. Jaishankar retain their ministries. Jyotiraditya Scindia, earlier Civil Aviation Minister, now gets Communications and Northeast Development. It's one of the pet projects for Prime Minister Modi. Giriraj Singh earlier had Rural Development, now is in charge of the Textiles Ministry. Mansukh Madavia, former Health Minister, now gets Youth Affairs and Sports and Labour and Employment Ministries. So remember, these are big, important portfolios that have been taken up by the leaders, clearly to show the sort of trust Prime Minister Modi has in them. For me, an immense honour, a very great privilege to be once again given the responsibility of leading the Ministry of External Affairs. You all know that in the last term, this ministry actually performed exceptionally well. It rose to many challenges. We delivered where the G20 presidency was concerned. We took on the challenges of COVID, including Vande Bharat mission and vaccine Maitri supplies. We also were the center of crucial operations like Operation Ganga and Operation Kaveri. So quite apart from the normal diplomacy, I think I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप जैसे जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए किसान सम्मान निधि जारी करने के लिए, आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, अब ये काम पहले से जारी है। इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कोई नया मंत्री आया तो नया ही करेगा। काम में निरंतरता, ये निरंतरता जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी और आने वाला समय मैं मानता हूं इस विभाग का है। आज भी अगर आप देखें तो दुनिया के बनिस्पत ना के बराबर प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग के पास हैं और ये समय आज की तारीख में प्रोसेसिंग का ही है। आप विदेशों में जाइए, जिस तरीके से प्रोसेस आइटम्स आपको मिलती हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत में खास तौर पे इसका बहुत बड़ा स्कोप है। देखिए, पहली तो बात तो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करना ही एक सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है और ये जो तीसरी बार के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जो 1962 के बाद फिर से एक बार रिपीट हुआ है, तो अब वो एक्सपीरियंस करना और भी स्टेज में बैठकर, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही मतलब सम्मान की बात है। शिवसेना पक्षाला आम्ही अपेक्षा करत होतो की शिवसेना पक्षाला कॅबिनेट मंत्रीपद मिळेल
परंतु ज्या पक्षाचा एक खासदार निवडून आला त्या पक्षाला कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं. प्रामुख्यानं HD कुमारस्वामी कर्नाटकचे यांचे 2 खासदार निवडून आले, त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं. जितन राम माझी हे बिहारमधून निवडून आले, स्वतः एकटे निवडून आले, त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं. त्याचबरोबर चिराग पासवान यांचे 5 खासदार निवडून आलेले आहेत बिहारमधून आणि त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं. खरं तर शिवसेना पक्षाचे 7 खासदार आले. एकूणच महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाने 28 जागा लढवल्या, शिवसेनेने 15 जागा लढवल्या. 28 जागेमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे 9 खासदार निवडून आले आणि शिवसेनेचे 7 खासदार निवडून आले. आमची अपेक्षा होती की शिवसेना पक्षाला एक कॅबिनेट मंत्री आणि एक राज्यमंत्रीपद मिळेल अशी अपेक्षा होती.